السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ لوگوں کا منٹو راشد عباس۔ آج ہم سیکنڈ ایئر 12ویں کلاس حصہ نثر سے پہلا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ پہلے سبق کے اندر ہے کیا۔ سبق کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں اوصاف کیا ہیں۔ اس سبق کے اندر کن کن چیزوں کے بارے میں بات کی جائے گی۔ سبق کا تعارف، ناجائز طور پر چھینی گئی جاگیروں کی واپسی، عدل و انصاف کی بحالی اور فراہمی، غیر مسلموں سے یکساں سلوک، آزادی اور حق گوئی کی بحالی، مساوات اور جمہوریت، حکومت کا اصل اصول، سادہ اور فقیرانہ طرز زندگی، وصیت کے لیے صاحب حیثیت نہ ہونا۔ ہمارے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کے اندر ان باتوں پر بحث ہوگی، ان باتوں کی تفصیل ہوگی اور بتایا جائے گا کہ ان باتوں کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے اپنی آنے والی زندگی میں۔ خلافت بنو امیہ کے 8واں فرمانروا یعنی کہ 8ویں خلیفہ 40 سال کی عمر میں دور خلافت یعنی کہ جوانی کے اندر، بہت کم عمری کے اندر ان دور جو ہے وہ خلافت کے اندر ان کا نام شامل ہو گیا، یعنی کہ ان کو تخت پر بٹھایا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ترتیب کیا تھی۔ جو 8ویں فرمانروا یہ بنی ہیں تو ان سے جو پہلے 7 گزر گئے ہیں ان لوگوں نے کتنا عرصہ حکومت کی، ان کے نام کیا تھے۔ دور نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختلف روایات کے مطابق 570 ہجری کے اندر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے اور پھر 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت ملی، یعنی کہ 610 میں انہیں نبوت ملی اور پھر 632 تک تقریباً 23 سال سے زائد تک ان لوگوں نے کیا ہے دور خلافت سنبھالا۔ دور نبوت کا جو ہے یہ 23 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا۔ پھر دور خلافت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کے جو ہے وہ صحابہ خلیفہ 632 سے 661، پھر ان کے بعد یہاں پہ آگے تب شروع ہو جائے گا پہلا حضرت امیر معاویہ 661 سے 680، یزید 680 سے 683۔ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے نواسہ رسول کے ساتھ تانے ہوا، یعنی کہ کیا ہے تو اس کا نام ہمارے سامنے ہے کہ اس نے کتنے سال جو ہے وہ حکومت کی۔ معاویہ 683 سے 684 1 سال ان کا بیٹا ہے۔ مروان 684 سے 85، عبد الملک 685 سے 705، ولید 705 سے 715، سلمان 715 سے 717، عمر بن عبدالعزیز 717 سے 720۔ ان کے بعد پھر کیا ہے دور خلافت آگے چلتا رہا۔ اب اس سبق کے اندر عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کون کون سی بات اہم ہے، ہم نے یہاں سبق کے اہم نکات بھی لکھ دیے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو سبق کی تفصیل بھی بتا دوں گا تاکہ آپ لوگ ان اہم نکات کو ایک نظر دیکھیں، یعنی کہ ایک بار پڑھ لیں اور پھر ایک بار لیکچر سن لیں تو آپ لوگوں کو فوراً سے خلاصہ تیار ہو جائے گا اور پھر کیا ہے ایک بار سن لینے سے ہی آپ لوگوں کو پورا سبق یاد ہو جائے گا۔ علامہ ابن جوزی اور فقہ و بیان کا ذکر، یعنی کہ علامہ ابن جوزی ایسے مشہور محدث گزرے ہیں جنہوں نے عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے یعنی کہ 2 عمروں پر ایک کتاب لکھی جس کو فقہ العمرین کا نام دیا، اور پھر انہوں نے یہ کتاب مصر کے کتب خانہ خدیویہ کے اندر دیکھی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی پر ایک الفاروق کتاب بھی مفید ہے یعنی کہ لکھی گئی ہے۔ علامہ ابن جوزی بتاتے ہیں، شبلی نعمانی بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، یعنی کہ وہ تمام لوگوں کے لیے برابر سلوک رکھتے تھے، کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ حمز کے عیسائی اور عبد الملک کے بیٹے عباس کا واقعہ، ایک مشہور واقعہ کہ حمز کے شام کا ایک شہر، وہاں کا ایک عیسائی شخص آیا، اس نے عمر بن عبدالعزیز سے یہ شکایت کی کہ عبد الملک کے بیٹے عباس کے پاس جو زمین ہے وہ میری ہے۔ آپ نے عباس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے جاگیر دی ہے، میرے پاس سند بھی ہے۔ تو عیسائی سے کہا کہ تم کیا جواب دیتے ہو؟
तो उसने कहा कि मैं कुरान मजीद के मुताबिक फैसला चाहता हूँ। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने अब्बास से वो ज़मीन लेकर हिस्से को वापस ला दी और अब्बास को कहा कि अब्बास, तेरे बाप की दी हुई सन्नत जो है वो कुरान मजीद से अफजल नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये ज़मीन वापस ले रहा हूँ। सलादीन बनु उमैया और तैमूरिया का जिक्र। सलादीन बनु उमैया और तैमूरिया ये बड़े खानदान जो गुजरे हैं। जब किसी शहजादे को कोई शहर दिया जाता तो यानी को किला दिया जाता तो इर्द गिर्द की तमाम छोटे लोगों की जमीनें छीन कर, जगीरें छीन कर उससे शहजादे को यानी कि उसको जागीराना तौर पर दे दी जाती ताकि उसका नाम जो है वो ज्यादा मशहूर हो जाए। तो ऐसे ही सलादीन बनु उमैया और तैमूरिया के खानदान के अंदर भी ऐसी नाजायज पॉलिसियां थी, नाजायज छीनी गई जमीनें थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, जमीनों की वापसी का नुमाया कारनामा। जब उमर बिन अब्दुल अजीज तख्त पर बैठे तो उन्होंने सबसे पहले इसी चीज को देखा कि वो जमीनें जो लोगों की हैं और हमारे पास है, हमने इन्हें वापस करनी है। तो लोगों ने जब ये बात सुनी तो उनकी फुफो उम्मे उमर को उन लोगों ने क्या है सफीर के तौर पर भेजा। उम्मे उमर हमारे सिलेबस में नाम है, लेकिन उनका असल नाम फातिमा बिनते मरवान है। उम्मे उमर जो है उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई, उनके अपने भतीजे के पास। वो कहा कि बेटा कि आप तमाम लोग आपको जो है खालिद समझेंगे बल्कि बगावत करेंगे। तो आपने कहा कि मैं क़यामत के सिवा किसी दिन से नहीं डरता, अगर मेरे पास के ज़मीनें अपनी भी हैं तो मैं उनके साथ भी यही सलूक करूंगा। उम्मे उमर की सिफारिश, उमर बिन अब्दुल अजीज का जवाब। बेटे अब्दुल मलिक और उलमा से मशवरा। उमर बिन अब्दुल अजीज जो हैं वो मशवरा करते थे कितने, 3 उलमा से, मकहूल से, मैमून से और अबू कलाबा से, और उसके बाद अपने बेटे अब्दुल मलिक से भी। तो तमाम ने यही जवाब दिया कि जमीनें वापस कर देनी चाहिए। तो उनका एक गुलाम था जो उनको बहुत ज्यादा अजीज था, गुलाम मुजाहम से राय ली और बताया कि हम जमीनें वापस करने जा रही हैं। मुजाहम ने ये कहा कि आपके भी बाल बच्चे हैं, उनके बारे में भी आप सोचें। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाल बच्चों का अल्लाह मालिक है। तो मुजाहम ने जब ये बात सुनी तो फिर क्या हुआ कि बहुत जल्द उनके बेटे अब्दुल मलिक के पास जाता है और बताता है कि आपका बाप यानी उमर बिन अब्दुल अजीज वो तमाम जमीनें वापस करना चाहता है जो आपकी जागीर है। तो मैंने उन्हें कहा है कि अपनी औलाद के बारे में सोचें। तो अब्दुल मलिक ने कहा नौज़ बिल्लाह आपने गलत बात की है। तो अब्दुल मलिक ये बात सुनते ही बाप से मिलने चले जाते हैं और पहरादार जो है वो वक्त के खलीफा उस वक्त जो है वो आराम फरमा रहे हैं, मिलने से मना करते हैं। लेकिन पहरादार की आवाज और बेटे की आवाज जो है उमर बिन अब्दुल अजीज के कानों में पड़ती है और उनकी आंख जो है वो खुल जाती है और वो कहते हैं कि जाने बदल बाप की जान ये कौन सा टाइम है मिलने का। वो बताते हैं कि जो जमीनें आप लोगों को देना चाहते हैं वो वापस कर दें। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि मैं ये जमीनें जो है नमाज जोहर के वक्त जो है वो वापस कर दूंगा, मुनादी करवा दूंगा शहर के अंदर। तो बेटे ने कहा यानी अब्दुल मलिक ने कहा क्या आपको पता है कि आप नमाज जोहर तक जिंदा रहेंगे? तो बाप ने कहा कि नहीं। तो उसने कहा फिर अभी ऐलान करवाया जाए और अभी जमीनें वापस की जाए। तमाम नाजायज जगीरों की बात थी। तो फिर ऐसा ही हुआ कि शहर में मुनादी करवा दी गई, लोगों को मस्जिद में जमा किया गया और लोगों में ये ऐलान किया गया कि आपकी जो जमीनें हमारे पास हैं ना तो आपको देने का हक है और ना हमें लेने का हक है। इसलिए ये सारी जमीन के दस्तावेज यानी कि सारे कागजात निकाल कर कैंची से कतर कतर कर फेंक दिए और उनमें से कुछ जमीनें यमन में थी और कुछ यमामा यानी कि अरब की मशहूर जगह, सौगात वाली जगह। इब्ने सुलेमान से मोहब्बत। उमर बिन अब्दुल अजीज अपने तमाम खानदान से ज्यादा इब्ने सुलेमान से मोहब्बत करते थे। वो जमीनें जो वापस देने जा रहे थे उनमें से कुछ जमीन इब्ने सुलेमान के पास भी थी। तो वो क्या है वो रोने लग गए, मना किया कि मेरी जमीन वापस ना दें। कहा यह जमीन किसकी है? तो उन्होंने कहा हजाज की। तो कहा हजाज की औलाद का हक है। फिर कहा कि आम मुसलमानों की। तो उन्होंने कहा फिर आम मुसलमानों का हक है। तो हमने कहा कि अमीर मोमिनीन आप जो हैं
इब्ने सुलेमान के साथ ये कैसा सलूक कर रहे हैं, तो कहा कि जो मैं अपने नफ्स के साथ करूंगा मुंसफाना तरीके से, तो वैसे ही मैं अपने सुलेमान से करूंगा, क्योंकि मैं अपने इब्ने सुलेमान को अपने बेटे जैसा समझता हूँ। हक गोई की आज़ादी, हक गोई जो है, हक गोई की आज़ादी और उसके हवाले से जो एहतसाल था कि जब अब्दुल मलिक तख्त पर बैठे तो लोगों को रोकने टोकने से मना किया कि कोई भी मेरी बात को रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं। लेकिन जब उमर बिन अब्दुल अजीज ने तख्त पर दौरे खिलाफत संभाला, उनके तख्त पर बैठे, तो सबसे पहले दो नहायत मुत्तदीन और राहबाज अफराद मुकर्रर किए कि जब मैं कभी कोई फैसला करूं या मैं कोई गलत फैसला कर दूं तो आप लोगों ने मुझे रोक देना है, टोक देना है। इस मामले से लोगों के अंदर नहायत बेबाकी से जुर्रत पैदा हो गई, यानी कि अपने हक हासिल करने के लिए उन लोगों के दरमियान क्या है, एक हौसला पैदा हो गया कि वो हक के लिए बात कर सकते थे। ईसाइयों यहूदियों के यहाँ मेहमान, कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज अक्सर यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ खाना खाते थे और खाने की कीमत अदा कर देते थे। ईसाई की जमीन और कब्र की जगह उमर बिन अब्दुल अजीज ने आखिरी आरामगाह यानी कि अपने मकबरे के लिए जगह पसंद की थी, वो एक ईसाई की थी। ईसाई को बुलाकर बताया तो उन्होंने कहा खुशी से वो जमीन देना चाहिए, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने 30 दिनार के अंदर उस जमीन को खरीदा, यानी कि फ्री में नहीं लिया। उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत का असर रसूल, उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत का असर रसूल उनकी मुआशरत मुल्क की अमूर जो हैं वो सारे एक जैसे थे। वो बताते थे कि तमाम लोग एक जैसे हैं, यानी कि किसी बड़े ऊंचे नीचे लोगों में कोई फर्क नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज आम लंगर खाने से खाना खाते और लंगर खाने में पहले 1 दिरहम भेज देते। एक बार रात के अंधेरे में मस्जिद में गए, एक शख्स वहां सो रहा था, तो उमर बिन अब्दुल अजीज का पाँव यानी कि ठोकर उसको लग गई। वो जलाकर उठा, अचानक से उठा और पूछा क्या तू पागल है? तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा नहीं, पहरेदारों ने उस शख्स को सजा देनी चाहिए कि आपने उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ जो है वो बदतमीजी की है। तो आपने कहा कि नहीं, इसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, इसने इस्तफसार किया, क्योंकि इसने पूछा और मैंने कहा कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत का असल असूल ये हो गया, मुसलमान बिन अब्दुल मलिक की वसीयत। जब मुसलमान बिन अब्दुल मलिक दुनिया से जा रहे थे, या फिर मुसलमान बिन अब्दुल मलिक जो हैं वो उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आए और कहा कि वसीयत कर दें। कहा मेरे पास वसीयत के लिए है क्या? कहा कि मैं अभी 1 लाख दिनार भेज देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर 1 लाख दिनार उन लोगों को वापस कर दो जिन लोगों से आपने वसूल की है। तो मुसलमान बिन अब्दुल मलिक ये बात सुनकर रोने लग गए। खुलफाए बनु उमैया की बेपना दौलत, जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक दुनिया से जा रहे थे तो उनके जो तरके में कुल रकम थी वो 1,10,00,000 थी, लेकिन जब उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया से गए तो उनके तरके में कुल 17 दिनार थे, इसमें 7 दिनार उनके कफन दफन के लिए खर्च हो गए और सिर्फ 10 दिनार थे जो उनके उर्सा के अंदर जो है वो तकसीम हुए, यानी कि बांटे गए। उमर बिन अब्दुल अजीज का कुल तरका 17 दिनार थे। इस सबक का मकसद जो है मकलाते शिबली, सिर्फ जो है मुकाला यानी कि सीरत नगारी। अजीज तुलबा, मैंने आप लोगों को सबक का तारसी पैराग्राफ और फिर 8 जो है वो फरमान बरदार पूरे खिलाफत के लोगों का नाम बताया और सबक के अहम नुकात के साथ साथ पूरे सबक की तफसील बता दी और फिर क्या है सिनफ और मकसद भी बता दिया। अगर आप लोग इन पॉइंट्स को तरतीब से तैयार कर लेते हैं और लेक्चर को अच्छे से एक बार बगैर स्किप किए सुन लेते हैं तो आपको ये सबक फौरन याद हो जाएगा। ये सबक आपके इक्तबास के लिए और खुलासे के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।